Now, Medha, two things can happen. One, people will watch this and say, oh my God, what a journey and how tough it is to get into the UPSC. I was doing some research. Now, in the recent examination, 11,35,000 people applied for the preliminary test to get into the UPSC. 5,73,000 students, that's more than 500,000, took the exam. Out of them, 13,000 qualified for the main exam. 2,500 qualified for the interview. 933 got selected. That's a percentage of 0.162, 0.16% chances of getting through. If you compare and contrast this with Harvard University, for example, 61,000 applied, 3.19% got through. So it's much easier to get into Harvard University, an Ivy League university, than it is to get into the UPSC. Now, when people can see this, they can say, "Par meri zindagi bhi to aisi thi." So if you come from a certain section of society, you can say, but what's the big deal? As he's saying, there are millions of people like him. Or you can say, if you've not been conditioned to grow up like that, what a phenomenal story. Do you think this film has the potential of commercial success? Or are you largely thinking this is a film which serves a social purpose? I truly believe that this film, like we've always said, that this film is based on two people. It's based on Manoj sir's journey and Shraddha ma'am's journey, but it's inspired by a million true stories, because you don't necessarily have to come from a certain stratum of society to have struggles in life. From every strata of society, people face struggles of different kinds. We're fighting internal battles, external battles. So I think every single person will relate to Manoj Sharma and Shraddha Joshi and other characters in the film, because everyone will see a part of their own struggle in the film. No, but there'll be those, Medha, who look at what happens in the film. I don't want to give too much away. I watched the film, remember, I don't want to get carried away and take some of the surprise away. But what Shraddha does, Medha, which is remarkable, is she stands by Manoj even when it isn't certain whether Manoj will make it through to the UPSC or not. He's still in the process and she's qualified for a government job. Is that something that stands out to you as being remarkable, that this woman who's in love with this boy stays with him even when it's not known whether he'll actually get through to a government job or not? Like you said, it's absolutely remarkable. It takes, like I said, it takes a certain kind of a person that Shraddha ma'am is, because it's easier to give yourself belief and courage and hope and everything to achieve your own dreams, but to give all of that to the person that you love you need to be a remarkable person to be that. And she's done that time and again through thick and thin, and she stood by him. She's been the silent force behind Manoj sir's struggle, and it's absolutely remarkable. That is the reason this love story, there's a film being made on this love story. It's absolutely stunning, and how much ever I've gotten to know Shraddha ma'am, I know deeper layers to her and to their love than what's shown in the film. So Shraddha, इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप एक ऐसे वक्त पे मनोज से प्यार करने लगती हैं जब मनोज के पास कुछ भी नहीं है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ना हो। आपकी उससे पहले एक सरकारी नौकरी लग जाती है, फिर भी आप मनोज के साथ रहती हैं। कई सारे लड़के और लड़कियां जब ये देखेंगे बोलेंगे कि लव स्टोरी हो तो ऐसी, असल ज़िंदगी में क्या हुआ और कैसे और क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बात है कि जब उस समय हम साथ में हैं, जब कुछ भी नहीं है, जैसे उस समय न प्री हुआ है न मेंस हुआ है, तो कुछ पता नहीं है, पर शायद इसीलिए हमारा साथ इतना मजबूत है क्योंकि हम उस स्ट्रगल के दौर में हमने एक दूसरे को यस बोला जिस समय। और मुझे लगता है कि मनोज का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग था, या वो उसका अट्रैक्शन इतना इम्पोर्टेंट था। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि फिल्म से कि रियल लाइफ से? नहीं, मैं जस्ट लाइन एक शेर याद आ रहा है। अच्छा, शेर याद इतर से महकना एक और बात है, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तो वो जो किरदार की खुशबू मैं देख रहा हूं आप भी काफी फिल्माना बन गई है ना, आपका भी अंदाज काफी फिल्मी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 4-4.5 साल से विदु सर के साथ हम लोग भी इस जर्नी में पार्ट है, तो मुझे हमेशा तो इस दौरान आपके काम का क्या हो रहा था? आप काम कर रही थी 4 साल से, सरकारी नौकरी छोड़ के आप फिल्मी बना रही हैं? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे थे, पर 4 साल से विदु विनोद चोपड़ा जी को इस पर काम करते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली उसके पहले हमें पता भी नहीं था कि ये फील्ड में इतना मेहनत लगती है। हमारा काफ़ी परसेप्शन चेंज हुआ, और इतना उन लोगों ने पूरा का पूरा जानने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रगल हुआ था, वहाँ जाके उस जगह में देख करके
क्या चुनौतियां हैं वो देखा, पूरा जो चर्चा हुई विक्रांत और मनोज के साथ में या मेधा और मेरा, हम लोग जब बैठ करके हम लोगों ने डिस्कशन किया, जानने की कोशिश की, बुक को पूरी तरीके से पढ़ के, जिस तरीके से पूरा मनोज की डायरी, मनोज की हैबिट है डायरी लिखने की, तो एक एक बात उन डायरियों में लिखी हुई है जो जो घटता चला गया। तो जिस तरीके से वो मेहनत से इतना ये बना है, तो इट्स अमेजिंग। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यू रियली कैन नॉट अडैप्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बुक, Sure. यू नो, इनटू अ फिल्म। there were so many things that he did जो फिल्म में नहीं है। इन्होंने दिल्ली में जब मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे थे तो डॉग वॉकिंग भी की है इन्होंने। ये कुत्ते घुमाते थे, कितने 80 रुपए 100 रुपए मिलते थे? एक कुत्ते का 400 रुपये। एक कुत्ते का 400 रुपए मिलता था। तो ये आप बताइए इस बारे में कि नहीं, ये इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जब श्रद्धा को, मुझे लगता था कि श्रद्धा को मालूम चलेगा तो श्रद्धा बोलेगी ये क्या काम कर रहा है, और मैं छुपा छुप के करता था शाम के टाइम, रात के टाइम पे। पर एक दिन श्रद्धा ने देखा तो श्रद्धा भी ने कहा मैं भी साथ चलना शुरू करती हूँ तुम्हारे। तो वो एक्चुअली मुखर्जी नगर का जो दुनिया है और नेहरू बिहार और गांधी बिहार की जो दुनिया है ना, उसमें लाखों बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई कैसे भी पैसा कमा रहा है, कोई किसी यहाँ पढ़ा रहा है। मैं तो कितने लोगों के दरवाजों पे घंटी बजा बजा करके गया हूँ कि भाई मुझसे कुछ पढ़वा लो यार, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ पढ़ाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनको एक आदमी गारंटर चाहिए। अब गारंटर कहाँ से लाऊँ मैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, उनको इंग्लिश पढ़वाना है, मैथ पढ़वाना है। न मेरे को इंग्लिश अच्छे से आता था, न मेरे मैथ अच्छे से आता था, हिंदी हिस्ट्री कौन पढ़वाएगा। तो अल्टीमेटली वो नहीं कर पाया मैं। तो कई काम करने पड़े और बहुत बच्चे कर रहे हैं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, अभी भी यूपीएससी के लड़के हैं, एमपीएससी के लड़के हैं, एसएससी के लड़के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो काम कर करके अपना काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, शाम को फिर पढ़ते हैं, कहीं और काम करते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो ये जो निम्न वर्ग है, जो गरीब आदमी है, उसके पास विकल्प नहीं है कुछ भी इसके अलावा। वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी उसको। हर एक आदमी को एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी पीढ़ी हो, चाहे वो मैं करूं तो मेरे बेटे को कम करनी पड़ेगी, या मेरा बेटा कर लेगा तो उसके बेटे को कम करनी पड़ेगी। आप देखिए ना, किसी से भी आप बात कीजिए, आपके कोई भी जो बुजुर्ग होंगे वो क्या बोलेंगे, बेटा हम ऐसे करते थे, हम तुम्हें याद नहीं है, हम वहाँ से पैदल जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया, इसलिए दूसरी पीढ़ी को नहीं करना पड़ा। तो हर दुनिया, पूरे इंडिया में आप कहीं भी देख लीजिए, हर एक पीढ़ी को में से एक आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। वो मैं था।